Hello students, I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. We started our second chapter, Structure of Atom, in previous lecture, right? In that lecture, we discuss about the Dalton's atomic theory, right? Then we discuss about the discovery of atom, which is discovered by Sir J.J. Thomson, right? By the experiment of cathode ray discharge tube. You can see the cathode ray discharge tube in the figure, right? After that, we discuss about the properties of cathode rays, right? Then we talk about the charge to mass ratio, which is also found by the J.J. Thomson, right? By this type of experiment, in which he applied electric and magnetic field to the cathode rays in the cathode ray discharge tube, right? Then we discuss about the Millikan Altrop experiment, by which we calculated the charge of electron and then we find the mass of electron, right? Today we are going to discuss about the other particles, subparticles which are present in the atom, right? Means today we are going to discuss about the discovery of proton and discovery of neutron. Let's start with the discovery of proton, right? Proton was discovered by Eugen Goldstein in 1886, all right? You can see the gold stain in the picture, right? It is known as canal rays or anode rays. The protons are also known as the canal rays and anode rays. They was discovered in anode rays experiment, right? वो कैसे discovered हुए? By the anode rays experiment, in which hydrogen is filled up in anode tube, and when it discharge the positive particles, means H plus produce are called proton, right? उसमें क्या किया, तो जो एनोड ट्यूब है उसमें हाइड्रोजन को फिलअप कर दिया गया और फिर जब उसमें से हमने करंट पास किया तो वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया एंड इट प्रोड्यूस H प्लस आयन एंड दैट H प्लस आयन पॉजिटिव आयन्स आर नोन एज अ प्रोटॉन्स, राइट? See the experiment. We take one discharge tube, right, in and attach a vacuum pump to maintain a low pressure in this discharge tube, right? After that, we take two electrodes. One is cathode and second one is anode, right? Then we attach that both cathode and anode with the battery, right, which provides a high voltage to this tube, right? From this battery we are going to pass a high voltage electricity, right? In this experiment we have to reduce pressure. We already discussed about that. For that we use a vacuum pump, right? And we have to provide a high voltage. By these two parameters we can perform this practical, right? Now here our cathode having some holes, right, to see the results, what results are carried out during the reactions. We have to use the perforate cathode, means in cathode electrode we need some holes from which our rays will be passed throughout this cathode, right? When we started the apply of the electricity, some rays are started from anode, right, and they pass through this cathode, right? They are but invisible rays, so we are using zinc sulfide coating at the cathode side. So whenever the rays which are producing from the cathode, they inside with the or colloid with the zinc sulfide, they glow, and by the glowing of this we can suggest that there are some particles which are producing from anode, right? If we apply a electric field, right, the
particles or rays which are produced from anode, they are deviate towards the electric plates, right? Electric plates of negatively charged. So we can say that if they deflect or deviate towards the negative charge, they are positively charged particles. सही है. अगर वो नेगेटिव साइड क्या हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं एनोड में से, दे आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो होप यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने प्रैक्टिकल कैसे किया, कैरिड आउट किया, और उन्होंने कैथोड रेज कैनाल रेज कैसे फाइंड आउट किए. तो नाउ let's see the properties of canal rays or the protons, or we can say that anode rays, right? They travels in straight line, right? They also travel in straight line like a cathode rays. They are not visible, but their behavior can be observed by the help of the fluorescent like the ZNS, right? जिंक सल्फाइड जैसे फ्लोरोसेंट का यूज करके हम उनका जो बिहेवियर है वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इनविजिबल्स, राइट? नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम एनोड, राइट? Canal rays are starting from anodes and moves towards cathode, right? Now these rays consist of positively charged particles, और ये इनके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो किसके, बिटवीन द कैनाल रेज एंड कैथोड रेज, राइट? कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, and here canal rays are starting from anode and then moves towards the cathode, right? Similarly, canal rays having a positive charge while cathode rays having a negatively charge, right? The most important point is that that depends on the material of electron and nature of gas present in the anode tube, right? In cathode rays property, we discussed that the rays do not depend on the material of electrode and nature of the gas present, but the canal rays depends. So why? Because we know that the canal rays means there are electron and electron having a very less mass, so we can neglect that mass. Means if we change the electrode or we change the gas which is filled in the cathode rays, जो कैथोड रेज पास हो रहे थे उसका मास ही इतना कम है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर कोई भी वो चाहे इलेक्ट्रोड हो या फिर कोई भी चाहे गैस फिलअप किया गया हो. जबकि जो हमारा कैनाल रेज है, दे आर प्रोटॉन एंड दे हैव सम मास मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, सही है? तो उसका मास ज़्यादा है. अगर हम गैस चेंज करें या हमारा इलेक्ट्रोड है वो चेंज करें तो क्या होगा, तो उसके रिलेटेड जो मास है वो भी चेंज होगा, जो हमारे कैनाल रेस है उनका, और उसी वजह से डिफरेंट गैस के पास डिफरेंट अमाउंट में प्रोटॉन प्रेजेंट हो तो उनका मास डिफरेंट होगा, और उसके ज़्यादा मास की वजह से दे आर अफेक्टेड और दे आर depend on the material of electrode and nature of the gas present, right? They deviate in the presence of magnetic or electric field, and by this experiment like cathode rays, they also find the charge mass ratio, right, for the canal rays. Now the most important thing is that the discovery of neutron, right? Neutrons are discovered by James Chadwick in 1932, right? Chadwick discovered the neutron in 1932. If you see, the proton and electron are discovered in 18th century, but the neutrons are discovered in 19th century. बहुत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सर्च हो जाने के बाद, डिस्कवर हो जाने के बाद, बहुत टाइम बाद न्यूट्रॉन्स आर फाउंड, राइट? उसका रीज़न क्या है वो हमें देखना है. तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ Chadwick, right? उसका फर्स्ट रीजन है दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल,
प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर उनके पास कोई चार्ज है तो वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, तो कोई ना कोई इफेक्ट देंगे। सही है, अगर कोई चार्ज है तो वो कोई ना कोई उसमें क्या देगा, क्लू देगा कि मैं प्रेजेंट हूँ। लेकिन वो न्यूट्रल है, बहुत शांत है क्लास में। अगर कोई ऐसा नोटोरियस स्टूडेंट है तो उसकी एब्सेंस प्रेजेंट कोई भी टीचर जल्दी रिमार्क कर लेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट होगा तो कोई ना कोई वो क्या करेगा, मस्ती करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई बहुत शांत बच्चा है तो उसकी प्रेजेंट एब्सेंट इतना जल्दी किसी के माइंड में नहीं आती है। सही है, जबकि नोटोरियस स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो पता चल जाएगा, एब्सेंट है तो अभी टीचर को पता चल जाएगा कि आज क्लासरूम में मस्ती करने वाला कोई नहीं है, मतलब कि वो क्या है, एब्सेंट है। सही है, तो ये न्यूट्रॉन भी शांत बच्चे जैसे थे, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे वो किसके जैसे थे, नोटोरियस स्टूडेंट जैसे थे, कि जिसकी प्रेजेंट एब्सेंस जल्दी समझ में आ गई कि वो प्रेजेंट है। लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल्स शांत थे बहुत, उनके पास कोई चार्ज नहीं था, तो उन्हें वो प्रेजेंट है वैसा पहले आइडेंटिफाई करना बहुत टफ था। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड कैसे हुए उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, कि पहले हमारे सिर्फ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स फाउंड हुए थे। सही है, तो पहले क्या माना जाता था, द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से है, तो जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 2, और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 1। तो अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम के मास की बात करें तो जो हीलियम है उसका मास 2 हाइड्रोजन के सिमिलर होना चाहिए। लेकिन बाय द प्रैक्टिकल ये मेजर हुआ कि जो हीलियम है उसका मास 4 हाइड्रोजन जितना है। तो ये क्यों है, जबकि वो कितना होना चाहिए, हीलियम का मास 2 हाइड्रोजन जितना होना चाहिए, जबकि आया कितना, 4 हाइड्रोजन जितना। सही है, तो ये 2 का डिफरेंस कैसे आ रहा है वो पता करने के लिए फिर ऐसा सब एलिमेंट्स में देखा, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही थी। सही है, कि जो मास था वो आना चाहिए जितना, उतने से ज़्यादा आ रहा है। तो वो ज़्यादा मास किस वजह से है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उसके अकॉर्डिंग जो मास होना चाहिए उससे ज़्यादा क्या था, एलिमेंट का मास हो रहा था। मीन्स ये जो ज़्यादा मास है वो किस पार्टिकल का है, तो उसी को लेके जो हमारे चैडविक है उन्होंने क्या किया कि अपना दिमाग चलाया और उन्होंने फाइंड आउट किया कि नहीं, उसके अंदर कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल से एक शांत बच्चा है जो बहुत ही होशियार है, और उसी की वजह से रिजल्ट क्लास का इतना अच्छा आ रहा है। सही समझ में आई बात। तो उन्होंने चैडविक ने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, तो उन्होंने उसके लिए किया, तो चैडविक bombard beryllium sheet with the high speed alpha particles and notice the emission of neutral particles। चैडविक ने क्या किया, ही bombard alpha particles means positively charged particles on the beryllium sheets, and he noticed the emission of the neutral particles। और जब उन्होंने जो बम्बार्डमेंट किया पार्टिकल का बेरिलियम शीट के ऊपर, तो उन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल्स जो थे उनका एमिशन ऑब्जर्व किया। सही है, और ऐसे उन्होंने न्यूट्रॉन को फाइंड आउट किया। तो हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया है। तो ये देखो, उन्होंने एक बेरिलियम शीट ले ली और यहाँ से वो एमिशन करवा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स का, और एक साइड रख दिया क्या, डिटेक्टर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अगर हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाते हैं बेरिलियम पे, और फिर डिटेक्टर में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन देखा नहीं गया। एक्चुअली वहाँ पे एमिशन हो रहा था न्यूट्रॉन का, लेकिन डिटेक्टर ने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि डिटेक्टर ऐसा था कि उसके पास अगर कोई चार्ज हो, सही है, तभी वो डिटेक्ट करेगा। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तभी वो उसे डिटेक्ट करेगा। लेकिन न्यूट्रॉन के पास तो कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया, बीच में एक पैराफिन रख दी। क्यों पैराफिन रख दी? तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराए बेरिलियम पे, तो क्या हो रहा है, एक पार्टिकल जनरेट हो रहा है। सही है, वो पार्टिकल पैराफिन पे बम्बार्ड होगा।
अब इस पार्टिकल की अल्फा की वजह से न्यूट्रॉन जनरेट हुए, अब उस न्यूट्रॉन की वजह से पैराफिन में से जनरेट होंगे, कौन जनरेट होंगे, तो प्रोटॉन जनरेट होंगे, और वो प्रोटॉन डिटेक्टर पे क्या कर रहे हैं, तो रिजल्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो उस वजह से हमें ये पता चला कि अगर यहाँ पे बेरिलियम और पैराफिन के बीच में कोई भी यहाँ पे चार्ज फॉर्म हो रहा है, कोई पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, वही हेल्प कर रहा है पैराफिन में से किसे, प्रोटॉन को एमिट होने में। अगर बेरिलियम में से कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा था तो जो हमारी पैराफिन थी उसमें से प्रोटॉन कैसे जनरेट हुआ। मतलब कि जब हम अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवा रहे हैं तब बेरिलियम में से कोई बिना चार्ज वाला पार्टिकल फॉर्म हो रहा है जो डायरेक्टली डिटेक्टर पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बीच में हम कोई सब्सटेंस रख दे, पैराफिन रख दे, वैक्स रख दे, तो क्या करेगा, जो वो नॉन चार्जेबल पार्टिकल है वो उस सब्सटेंस में से, उस पैराफिन में से चार्जेबल पार्टिकल प्रोटॉन को एमिट करेगा जो डिटेक्टर पे हमें शो होगा। सही है। वो प्रोटॉन किस वजह से वहाँ से एमिट हुए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन चार्जेबल पार्टिकल्स, मीन्स बेरिलियम से कोई नॉन चार्जेबल पार्टिकल्स भी फॉर्म हो रहे हैं, और देन दैट नॉन चार्जेबल पार्टिकल्स आर नोन एज द न्यूट्रॉन्स। सही है। तो उस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। ओके, नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो ये हमारा जो न्यूट्रॉन था वो क्या था, नॉन चार्जेबल था। ये जो तीन हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टडी किए, कौन से इलेक्ट्रॉन पहले किया, फिर प्रोटॉन किया, फिर न्यूट्रॉन किया, तो उसके यहाँ पे हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टी है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो एक लिख लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिंबल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन हैविंग अ सिंबल ई, एंड उसका जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ई जो माइनस है वो शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास है वो नेगेटिवली चार्ज है। उसका रिलेटिव चार्ज क्या है, तो -1 है, उसके ऊपर ई माइनस लिख सकते हैं हम। सही है। इसे इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻30 राइट। नाउ प्रोटॉन का सिंबल है पी, उसका भी चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज है इसका भी, लेकिन इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और इसका रिलेटिव चार्ज भी क्या है, +1। तो हम प्रोटॉन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल p, और उसके ऊपर प्लस चार्ज। सही है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है 1.672 इंटू 10⁻⁻27, जो कि सारे मास किस में है, किलोग्राम में है, और जो चार्ज है वो कूलम में है। सही है। न्यूट्रॉन है उसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। सही है। उसके पास ना तो कोई एब्सोल्यूट चार्ज है ना तो रिलेटिव चार्ज है, उसका मास है नियर अबाउट द प्रोटॉन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों का मास क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम है, तो वी कैन निग्लेक्ट इट, राइट। और अब क्या हो रहा, तो इसके पास जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो वी कैन डिनोट द न्यूट्रॉन बाय द n0। सही है। 0 का मतलब होता है हमारा कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो हमारे पास एटॉमिक मास वाला प्रॉब्लम आ रहा था कि जो मास था वो उसमें क्या आ रहा था, कोई डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस किसने कवर कर दिया, न्यूट्रॉन ने। मतलब कि क्या हुआ, जो हमारा मास होता है वो न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास होता है। तभी जो हीलियम था उसका मास क्या था, तो उसके पास 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे, और उसी वजह से क्या हुआ, तो उसको चाहिए थे 4 हाइड्रोजन एटम। सही है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन ही है, तो क्या होगा, एक उसका तो 4 हाइड्रोजन होगा, तभी ये बैलेंस होगा हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे। आई बात समझ में। तो इसी तरह से बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन ये पूरा हमने सब एटॉमिक, हमारा एटम कंप्लीट कर दिया। ये जो 3 है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। सही है। जो एटम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास अदर पार्टिकल्स है जो इतना
उसकी ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करते हैं, लेकिन वो भी 1 बाय 1 फाइंड आउट हुए हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ हम स्टडी करते हैं सिर्फ फॉर द इंफॉर्मेशन के कौन से पार्टिकल्स हमारे जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके अलावा कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है प्रोजिट्रॉन। It was discovered by C.D. Anderson in 1932. It bears a unit positive charge and its mass is equal to that of an electron. Thus, its mass regarded as a negligible. सही है, उसका mass negligible है, positively charged particle है. It can be denoted as E plus. So, it's also known as a positive electron or it's known as positron. Okay, ये हमारा एक दूसरा सब atomic particles है other than the electron, proton and neutron. सही है. Now the second one is meson. Yukawa in 1935 discovered this particle, right? It may be positively, negatively charged and neutral. ये जो हमारे meson है वो positively भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं और neutral भी हो सकते हैं। और on the basis of this classification they have 3 types. The first one is pi meson, second mu meson and pi not meson, मतलब के neutral particles, right? They are called the meson family, right? And now our third particles is neutrino, right? Pauling discovered this particle in 1927. They do not bear any charge, इसीलिए उसे नाम दिया गया है न्यूट्रिनो के, वो न्यूट्रॉन जैसा है। They are electron neutral particles, right? And our last one is anti-proton, कि जो हमारे 3 मेन पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अलावा भी 4 एटम्स अभी तक फाइंड आउट हुए हैं। उसमें से लास्ट है एंटी प्रोटॉन विच इज डिस्कवर्ड बाय सेग्रे इन द 1956, right? And it bears a negative charge and its mass is equal to the proton, and that's why we says that it is known as the anti-proton, कि प्रोटॉन जितना मास है लेकिन चार्ज नेगेटिव है, so they are known as the anti-proton, right? But mainly अगर आप देखो तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, राइट? एटम्स के सिर्फ 3 जो सब पार्टिकल्स है वही मेजर है और उसी को हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। तो आपको दूसरे की प्रॉपर्टीज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो तीनों सब पार्टिकल्स थे उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, वो सब हमने यहाँ पे देख लिया है। उसकी डिस्कवरी किसने की और कब की, कैसे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तो हमने एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे, लेकिन हम पहले लेक्चर में बात की थी कि वो जो एटम है कैसा दिखता है, वो भी तो स्टेप बाय स्टेप हमने उसमें इवोल्यूशन देखा है। तो पहले हमने डाल्टन के एटम की बात कर ली, सही है, कि वो बिलार्ड बॉल जैसा है। अब बाकी के जो हमने हिस्ट्री में देखे थे कि एटम, जे थॉमसन ने जो एटम दिया वो कौन सा था, रुथरफोर्ड ने क्या दिया वो कौन सा था, उसमें कौन से इफेक्ट थे, डिमेरिट्स थे, उसकी वजह से नया फाइंड आउट हुआ, वो सब हम अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वो भी लिख सकते हो। थैंक यू।